that is 1 point. तो हम लोग दोनों भी रखेंगे, फिर we can make a choice from here. So when you are applying, I would say when you are attempting multiple choice, I would say rather than looking at the answer first, try your calculation, because then you will be confident that yes, I have done it correct. If you look at this, no, then while calculating, that will always play in your mind. Will this be the answer? Will this be the answer? Will this be the answer? So try to read the question, try to calculate it, and then according to the answer, then decide which one will be your best possible option to be chosen. Fair enough? उसके बाद मुझे लगता है 10th question is nearly similar to this. 10th question में शायद x और y का distance पूछा है. So I think so it's very simple and easy. I think you should practice this because this was left off. मतलब वो कितने दिन तक रुका रहा है, तो वो try करो तुम लोग. अच्छा, who was asking here? Someone last time asked me online. किसी ने तो भी पूछा था इसके बारे में. Sir, I have done it on the whiteboard. Can you check it? है कोई जो जिन्होंने पूछा था यहाँ पे है ऑनलाइन कोई? No, I don't think so. चलो ठीक है. Anyways, हो गया था ना? अभी 10th वाला ट्राई किया. हो गया क्या? अरे वेरी गुड. Today was the game of the day. कभी भी कल हुआ. If you have doubt, you can ask. No problem. Even here online also, if you all have doubt, please do ask. Just talking to him. Sort of thing. हो गया. And देखो ना, ये I think I don't think there are any. Maybe okay. That was the last that we had. Yes, online you are done with the 10th question. 10वां प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तुम्हारा. Yes, sir. Sorry. Simon. 10th वाले में. अच्छा, उन्होंने वो गन फायरिंग कर दिया है. और अलग है. उन्होंने क्या बोला है? A person is standing at a distance. तो ये उतना क्लियर हो गया. Another person is standing behind the person at the distance 5 from the place. There are 2 rounds of fire shot after 2 seconds. ये टोटल y हो गया. ये पर्सन b हो गया.
और v equal to 0. Now he is going to shoot fire a gun. Am I correct? He is going to fire a gun. And the observer is B actually. हमको B का very important role है. तो उन्होंने क्या बोला है? पहला sound कभी सुनाई देता है? 2 seconds. So that is when this travels in this direction. Sound travels in this direction. ये 2 seconds है ना? ये distance actually अपना कितना हो गया है? Y minus x. Correct? This is y minus x. है ना? और दूसरा आवाज कब सुनाई देता है? 3 सेकंड के बाद. तो अब दूसरा आवाज जब सुनाई देता है तो साउंड इज ट्रैवल्ड दिस डायरेक्शन एंड बैक इन दिस डायरेक्शन. ये टोटल मिला के 3 सेकंड हुआ है ना? मतलब क्या हो गया? ये y प्लस ये x, y प्लस x को कितना मिल लगा फिर 3 सेकंड एंड y माइनस x को कितना लगा है? तो अभी डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. स्पीड तो हमारे पास दिया है ना, स्पीड तो कांस्टेंट है, सेम फॉर्मूला. अभी इस बार हम लोग एको का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस बार हमने डिस्टेंस डायरेक्टली टोटल लिया है. फॉरवर्ड इस केस में फॉरवर्ड पे डिस्टेंस का कैलकुलेट रखा है और रिवर्स पे डिस्टेंस कैलकुलेट. तो वी आर गोइंग टू यूज प्लेन फॉर्मूला, नो डिवाइडेड बाय 2, है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v इनटू t. बस इतना ही फॉर्मूला लिखेंगे हम. डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा. समझ में आ रही है बात? ऑनलाइन हियर सेपरेट. यस सर. तो हम लोग पहला डिस्टेंस d1 निकालेंगे. d1 निकालने से क्या चला डायरेक्टली राइट y माइनस x. लिख दूं मैं y माइनस x इज इक्वल टू v क्या है 320 इनटू 2 सेकंड. करेक्ट? ओके, 320 मीटर पर सेकंड इनटू 2 सेकंड. तो ये बनता है 640 मीटर. है करेक्ट? और दूसरा है y plus x. y plus x is equal to 320 into कितना 3 सेकंड. बराबर है? तो ये 3 सेकंड से कैलकुलेशन बनेगा 960, है ना? ये हमारा तो y minus x ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. y plus x ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा. अगर हम इसको ऐड कर दे दोनों को, है ना? तो ऑन एडिंग व्हाट वी गेट? On adding 1 and 2 we get 2y is equal to 1600. तो y का वैल्यू कितना आएगा? 800 मीटर. बराबर है? The b का distance from the cliff. The distance that b is standing from the cliff. Now we want to find the distance between the two of them. Correct? नहीं सॉरी, a का distance निकालना है cliff से, है ना? ये तो निकाल दिया हमने 640. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर इस जगह पे, है ना? तो x का वैल्यू क्या आएगा? 960 minus 300. दैट इज 1. करेक्ट? समझ में आई बात? ऑनलाइन यस सर. समझ में आया हाउ टू गो अबाउट दिस? यस यस. पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है ना? मुझे लगता है नीचे जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है. ये पार्ट this time I am just showing it. Next time I will not write below. दिख रहा है अभी? किया कैप्चर? Next time I will not write. This is the part which I do not know about. Below, sorry. Anyway, we are not writing more now. अभी हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं. तो क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर बीच में एक आधा मतलब सी मैं लोगों को पिछली बार भी बोला था, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमको कितना टाइम मिला है, that we have already completed our syllabus and in fact the time given was ample. 5 महीने थे, 1 महीने में 2 चैप्टर्स आराम से हो सकते हैं. तो हम आई थिंक वी स्टार्टेड इन मे. करेक्ट? मई में स्टार्ट किया था हमने, याद है? अप्रैल का आधा और मई का आधा ऐसा कुछ भी किया था. तो 1 मई पूरा काउंट कर. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने. हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर को हम अटेम्प्ट करेंगे.
तो nearly 7 months before we attempt exam. और उसके बाद नवंबर का दिसंबर लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च, एट द मोस्ट मार्च एंड या अप्रैल। तो हमारे पास या तो 3 महीने या तो एट द मोस्ट 4 महीने थे। तो इसलिए तब हमारे और उस सेकंड लिस्ट में सेकंड सेमेस्टर में आप 2 चैप्टर्स थोड़े से लिटिल मींस लॉजिकल, उसको हमने लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं एक उससे अच्छा उसमें से एक इजी चैप्टर जो है वो हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो थोड़ा बड़ा भी है पर नॉट सो डिफिकल्ट इज, है ना। तो हम पहले अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में आई टेल यू व्हेन विल स्टार्ट होता है ना। एक रिवीजन मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन विल कंप्लीट, उसके बाद हम वो चैप्टर ले लेंगे एंड देन विल स्टार्ट द सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन प्लस प्रैक्टिसेस ऑफ टेक्स्ट। अभी सर ने तुम लोगों को बोला होगा प्रैक्टिस को भी टेस्ट की, तो वो हम लोग चैप्टर वाइज है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज़ 20 मार्क्स एमसीक्यूज निकालना। आई ट्राई द मैक्स, है ना, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज निकाल के एक चैप्टर के दिए जाए ताकि यू विल बी कंफर्टेबल विद ऑल। क्योंकि एक इसमें कुछ 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, साउंड का आधा चैप्टर रखा हमने, आधा मींस ओनली द सेक्शन 1 है फर्स्ट मॉड्यूल का। तो मतलब हमको न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ही इसमें है साउंड के। उसके बाद का जो पार्ट है इनफैक्ट सेकंड इसमें मेजर रखा हुआ है, क्योंकि साउंड इज आर नो डाउट 7 चैप्टर, बट जो सेकंड सेक्शन में हमारा 8 चैप्टर है दैट इज कैलरीमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो लगेगा उसको। उसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा एसी वर्किंग ऑफ एसी मोटर, सॉरी एसी जनरेटर इज नॉट, जहाँ तक मेरी जानकारी अपने स्कोप में से एलिमिनेट किया है। एक बार वो मैं फिर से वेरीफाई करता हूँ, बट आई एज फार एज आई नो उन्होंने वर्किंग मतलब कैसे काम करता है वो नहीं बताया, पर उसके हमारे रूल्स और सब है। तो वो चैप्टर में डरने की बात नहीं है, बट इतनी तैयारी रखनी पड़ेगी कि जो भी कंसेप्ट आएगा मैं वापस उसी दिन रिवाइज करूँ। सिंपल डीसी मोटर नहीं है, सिंपल डीसी है मेरे हिसाब से, एसी जनरेटर नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। इफ यू हैव इट नाउ यू हैव समथिंग मैंने डाउनलोड किया। 10 नहीं है, 10 ही है। उसके तो वैसे भी चैप्टर नंबर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट में है वो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। Understanding the direction of current, right? Then your comparison of DC DC, AC current और DC current का comparison, एक पीस करेंगे, एप्लीकेशन इसका भी नहीं है। नहीं है, Fleming's right hand rule and its application in understanding the direction of current in the coil and electron. Okay, right hand rule का application, left hand का conductor carrying current in magnetic field experience force, Fleming's left hand rule and its understanding. Simple introduction. ठीक है, so let us come back.
पहले चैप्टर से स्टार्ट करें. फर्स्ट चैप्टर विल बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. सबसे पहला चैप्टर का नाम कोर्स था. हमने चैप्टर का नाम आई एम a little we get a little disturbed with the name of the chapter actually and the content of the chapter. क्योंकि कोर्स जब भी हम कोर्स जब नाम लेते हैं तो we get into our previous days where we were studying, है ना. हम जब कोर्स पढ़ा करते थे तो कोर्स को मास का एक्सेलरेशन एंड ये डेफिनेशन हम यूजुअली प्रिज्यूम करते थे. But we are actually not studying just the course, we are studying the effect of course actually. ये chapter में course the name is just misguiding us sometimes, है ना. कई बार 9 के बच्चे पहली बार 10 का बुक उठाते हैं ना, तो अगर जो पढ़ता है पहली बार तो he gets a little, first of all when he looks at the name or she, they get very happy कि यार ये तो continue है. And the next instance is then some of them get a little disturbed कि अरे ये तो बड़ा अलग हो गया है, तो कुछ अलग ही है. तो let us come back. अभी फोर्थ चैप्टर में देखो, याद रखना अगेन आई रिपीट, बिकॉज़ वी आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यू वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, है ना. जो हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझने चाहिए हम लोग वो समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर. तो वो हमने किए. अभी उसके ये पूरी एक वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन रीड करना and then getting your doubts if at all they are there, because we are trying to get to those important concepts which children do not easily understand, है ना. रीड करके जो जल्दी से समझ में नहीं आए वो हम उनको समझाने की कोशिश किया. तो जब तुम टेक्स्ट रीड करोगे, आई वुड रिकमेंड नाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग बिकॉज़ यू हैव एम्पल टाइम. यू कैन स्टार्ट रीडिंग योर फर्स्ट चैप्टर. अगर एक पूरा हफ्ता भी दे दिया तो बाय द नेक्स्ट वीक यू विल कम टू नो दैट फर्स्ट चैप्टर में मुझे ये डाउट है, सेकंड चैप्टर में मुझे ये डाउट है. एंड आई थिंक सो रीडिंग इज नॉट अ बिग डील. हार्डली कितने पेजेस है फर्स्ट चैप्टर को? 18 पेजेस. एंड 18 पेजेस में से लगभग 2 पेजेस कंप्लीट, 2 कंप्लीट पेजेस एक्सरसाइज में गए थे, है ना. तो मटेरियल कुछ पार्ट डायग्राम में जाता है. तो 18 में से हम लोग लगभग 3 से 4 पेजेस ऐसे सोच सकते हैं कि दे आर नॉट अ रीडिंग मटेरियल, दे आर जस्ट डायग्रामेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग मटेरियल. तो हमारे पास 40 पेजेस रीड करना है ना. चलो 15 पकड़ लो. 15 पेज है तो इट्स अ बिग डील. वन डे इवन इफ यू टेक 5 days, वन डे 3 पेज इज नॉट अ बिग डील, है ना. बड़ी बात नहीं. 3 पेजेस पढ़ो छोड़ दो, अगले पर दूसरे दिन 3 पेजेस पढ़ो छोड़ दो. बट मेक इट अ हैबिट दैट इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट, मेक द पॉइंट देयर विद द मार्क ओवर देयर, दैट्स जस्ट द डाउट आई वांट टू गेट क्लियर. तो जब भी मतलब हम करेंगे तब हम डाउट क्लियर करेंगे. अब पहले चैप्टर में मैं स्टार्ट तो कर रहा हूं. पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी पूरा सिलेबस फर्स्ट 6 चैप्टर प्लस द 7 पार्ट हम लोग थोड़ा उसको रिवाइज कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट चैप्टर वाइज रिवीजन, है ना. फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने तक. और फिर उसके बाद डू वी हैव इनफ नंबर ऑफ सेशंस टू डे? नहीं होंगे हमारे पास. तो एक इसमें 2 चैप्टर्स का कर लेंगे, है ना. एक इसमें 2 चैप्टर आए तो स्टार्ट कर सकते हैं. एक सेशन में 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करके फिर एक फुल राउंड रिवीजन देंगे. then we start till then we are already starting the तुम्हारा फर्स्ट 2 चैप्टर का रिवीजन हो गया, फर्स्ट 2 चैप्टर का टेस्ट हो गया, दूसरे 2 चैप्टर का रिवीजन, दूसरे 2 चैप्टर का टेस्ट. ऐसे करेंगे so that will be a better. Okay, so let's do it. Now I also would ask you all, see I would recommend a chapter wise. 2 चैप्टर से अच्छा एक चैप्टर मुझे ज्यादा सुटेबल लग रहा है क्योंकि then you can focus on one chapter. ऐसा मुझे 2 चैप्टर्स का कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है. मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एमसीक्यू एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ. अगर 2 चैप्टर करने गए तो क्या हो जाएगा, फिर 1 यूनिट का आधा पार्ट इसके साथ करो, 1 यूनिट का कुछ पार्ट उसके साथ करो. जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर ले लिया, वो यूनिट नंबर 1 में आता है हमारा वर्किंग इंजन अकाउंट. तीसरा चैप्टर मशीन, है ना. तीसरा चैप्टर मशीन और फिर अगला चैप्टर हम डायरेक्टली किसमें चले जाएंगे, लाइट में चले जाएंगे. लाइट का एक चैप्टर आ जाएगा अंदर, है ना, उसके अंदर फिक्स जाएगा तो वो अलग इसमें हो जाएगा. तो उससे हम सेपरेट एक चैप्टर ले या यूनिट वाइज टेस्ट ले. ये मुझे तो चैप्टर वाइज वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर चैप्टर वाइज में क्या हो जाएगा, हर चैप्टर में यू कैन फोकस. लेटर ऑन वी कैन अगेन ट्राई फॉर द यूनिट वाइज. तो पहले हम चैप्टर वाइज की एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, है ना. टेस्ट और रिवीजन तो अपना 2-2 का जो पैटर्न है वही रखेंगे. रिवीजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं, है ना. रिवीजन में 2 का पैटर्न रखोगे तब तक एक चैप्टर हो गया, उसको तुम रिवाइज करके टेस्ट दिया, दूसरा चैप्टर हो गया टेस्ट दे दिया. हम ऐसे भी एक चैप्टर ले रहे हैं
चलो अभी फिलहाल पूरा ओवरऑल रिवीजन थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे, मतलब अपने पास जितना टाइम है उस हिसाब से, and then we'll begin with the actual revision because why I'm saying is I want you to first read the chapter thoroughly, है ना। पहले दो चैप्टर्स नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो उसको रीड करके आ जाओ, तो दो चैप्टर्स एक बार रीड हो जाए तो हम लोग उसका फिर रिवीजन कर लेंगे। तो अभी पहले चैप्टर फोर्स, है ना। फोर्स में पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट इज हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? अभी इफेक्ट, फोर्स के काफी इफेक्ट हमको पता है। फोर्स सेट्स एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, चेंजेस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सब हमने 9th ग्रेड में पढ़ा है। बट तब हम लोग, हमारे पास एक फिक्स कंडीशन नहीं था, तब हम लोग वी वर कंसीडरिंग जनरलाइज्ड कंडीशन कि ऑब्जेक्ट कैसा भी हो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो गया, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, और ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये हमारी एनालिसिस था पिछले साल जो हमने फोर्स पढ़ा। करेक्ट चिल्ड्रन? एम आई करेक्ट? ऑनलाइन तो गए, सो तो नहीं गए ना बच्चे? मुझे आवाज आनी चाहिए ऑनलाइन की। Yes, sir. ओके, तो अभी द थिंग इज दैट हम अभी एक स्पेशल कंडीशन ले रहे हैं, है ना, कि हम लोग ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है ना। एक एंड बोलो या तो एक जगह पे, किसी एक जगह पे वो फिक्स है और फिर बाकी इट्स फ्री टू मूव, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम जब फोर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग फ्री पार्ट में जब फोर्स अप्लाई होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग बात कर रहे हैं। देखो फिक्स पार्ट पे फोर्स अप्लाई करके तो कुछ फायदा है नहीं, वो तो वैसे भी इट्स नॉट आवर डिजायर। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे कि किसी चीज को फिक्स कर दिया उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम लोग यूजुअली किसी चीज को, अनलेस वी वांट टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, unless we want to change the shape of the object, we till then we will not fix anything। तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं कि फ्री एंड पे, जहां पे फ्री है वहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमको कुछ। तो हमने पहले क्या देखा था कि अगर फिक्स पॉइंट से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमको उस फोर्स का क्या इफेक्ट मिलेगा। तो एक सिंपल स्टेटमेंट तो ये कि इट विल गिव अस अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। वो टर्निंग इफेक्ट देता है, उसका मोमेंट तैयार होता है, तो उस मोमेंट का कुछ तो भी मैग्नीट्यूड है ना। फिर उसमें हमने क्या सोचा कि किस चीज पे वो डिपेंडेंट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं, वो कौन सी चीजों पे डिपेंडेंट होगा। तो पहली बात तो नो डाउट, देखो वी सेड, देखो अभी समझो यू माइट हैव सीन दैट ब्लैकस्मिथ, कभी देखा है किसी ने ब्लैकस्मिथ को? तो मैंने तो इधर जाते हुए देखा, ये साइड पर मुझे है, बट मैंने कहां पर देखा है दैट देयर इज अ ब्रिज ओवर देयर, ये ब्रिज पे देखा है दरगाह के ऊपर, वो जहां पे एंड होता है ना वहां पे ब्लैकस्मिथ का ये छोटा सा शेड है, छोटा है, वहां पे वो काम करते हैं देखा है। सो व्हाट दे डू इज दे यूज, उनका मेन काम क्या होता है कि किसी चीज ऑब्जेक्ट को शार्प शेप देना या तो कोई स्पेसिफिक चीज, तो उनका काम क्या है, उस पे हथौड़ा मारो तो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, है ना। दैट इज द मेन रूल। हमारा वो रूल नहीं है, हमारा क्या रूल है, हमारा ये रूल है कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। I'll give an example. We all have played with fidget spinners usually. At least seen it, if not played. तो लोग कंपटीशन लगाया करते थे कि फिजिक्स स्पिनर से रोटेट करेगा किसका ज्यादा दे सकता है। तो कैसे उसमें क्या होता था, जिसका ज्यादा फोर्स एंड पॉइंट पे लगेगा और नो डाउट उसका जिसका वो सेंटर जो फिक्स पॉइंट है वहां पे जितना फ्रिक्शन लेस होगा उतना वो फिजिक्स स्पिनर ज्यादा घूमेगा। बस इसके अलावा अगर एक सेम फिजिक्स स्पिनर दो लोगों को दिया जाए, मतलब इसका हो गया तो उसके पास एक है ना, तो अगर सेम दिया जाए तो किसका ज्यादा घूमेगा, तो एक वो बंदा उसको एक तो होल्ड कैसे करता है ना, फिक्स पॉइंट कैसे होल्ड करता है ना, उसको टेढ़ा करोगे ना तो वो ज्यादा नहीं घूमेगा, याद रखना उसको एकदम शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, इट शुड बी हेड पैरेलल टू द ग्राउंड। दूसरा, उसको जब रोटेट करोगे कोई भी डायरेक्शन हो, भले पावर यूजुअली यू टेक इट इन द इनवर्ट डायरेक्शन, है ना, एक साइड पे जो भी तुम्हारा वर्किंग हैंड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको अंदर की तरफ तो घुमाओगे तो अंदर तुम एग्जैक्टली वो एक लीवर के एंड पॉइंट पे तुम लोग फोर्स लगा रहे हो तो थोड़ा अंदर की तरफ लगा रहे हो, अगर एंड पॉइंट पे लगाओगे तो उसको इफेक्ट अच्छा मिलेगा, आउटसाइड पे लगाओगे सॉरी थोड़ा अंदर की तरफ लगाओगे तो कुछ ज्यादा देर तक नहीं रोटेट होगा,
है ना। तो पहली बात हो गई कि तुम उसका डिस्टेंस कहाँ पर तुम लोग फोर्स अप्लाई करते हो, और दूसरा आ जाएगा कि कितनी फोर्स अप्लाई करते हो, है ना। समझो दोनों ने एक ही जगह पे फोर्स अप्लाई किया, पर एक ने जोर से मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, एक ने कम फोर्स लगाया, तो जिसने ज्यादा फोर्स लगाया उसका पोजीशन ज्यादा रोटेट हो जाएगा, जिसने कम फोर्स लगाया वो कम रोटेट हो जाएगा। इन द सेम कंडीशन, अदर कंडीशंस आर सेम, ओनली द फोर्स इज डिफरेंट एंड ऑटोमेटिकली द वन विद ग्रेटर फोर्स विल हैव बेटर इफेक्ट, है ना। अगर वो अभी दूसरी बात, अगर वो जो बंदा थोड़ा अंदर की तरफ से फोर्स लगा रहा है ना, वो तो कम घूमेगा अगर सेम फोर्स अप्लाई करेगा, पर डिस्टेंस छोटा है, छोटा बड़ा। अगर उसको सेम वो अंदर अप्लाई करने के बाद उसको अगर सेम इफेक्ट चाहिए तो उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये लॉजिक हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस बार क्वेश्चन अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन आएंगे वो तोड़ मरोड़ के आएंगे। MCQ बोला था, questions are expected to be broken into pieces, they are rearranged, they are twisted, they are turned, they are the way they wanted them to be। हाँ, डरने की बात नहीं है, सिर्फ रीडिंग स्किल्स अच्छी रखो और क्वेश्चन पूरा रीड करने की कोशिश करना, तो इतना याद रखना, तुम क्वेश्चन पूरा ठीक से रीड करोगे ना 100% तुमको आंसर मिलेगा, इसमें कोई भी बड़े डाउट नहीं है। तो मेजर पार्ट व्हाई चिल्ड्रन, व्हाई पीपल लूज द मार्क्स, बिकॉज कई बार मैंने देखा है बच्चों ने आंसर दिया है और क्या किया है, क्वेश्चन रखा है उसका आधा पार्ट रीड किया, वो सिर्फ आधा पार्ट रीड किया और आंसर पर वेरीफाई करो ना तो आंसर इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द हाफ पार्ट, बट व्हाट लाइज द मेन गिमिक लाइज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उनको जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो चाहिए वो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मेंशन नहीं किया, वो दैट इज द मेन पार्ट। तो इसलिए मैं कहता हूं जब तुम रीड करोगे डू नॉट वेट कि अरे हाँ इतना पार्ट मुझे पता है मतलब ये आंसर ऐसे ही होना चाहिए, do not get into that kind of attitude, that kind of, do not presume it। हम खुद को प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि मैंने हाफ पार्ट रीड किया मतलब ये क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने रीड किया, शायद उन्होंने हाफ पार्ट क्वेश्चन का वैसे ही डाला है जो टेक्स्ट बुक में था, पर लेटर हाफ उन्होंने चेंज करके डाला। तो हमारे टेक्स्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऐसे भी लिखे हैं, तो वो थोड़ा उसको तोड़ मरोड़ के डालने की कोशिश किया जा सकता है, तो ये याद रखना। इसलिए दैट्स व्हाई आई से रीड द एंटायर क्वेश्चन, डू नॉट इवन मिस आउट अ वर्ड, क्योंकि एक वर्ड भी डिफरेंस ला सकता है कुछ आंसर, है ना। द वे यू आंसर तो ठीक से रीड करो, बाकी डर नहीं, देखो यू रीड इट, यू शुड नॉट बी अफ्रेड दैट योर आंसर इज रॉन्ग इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट, है ना। हमने अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ा है और तुमने क्वेश्चन ठीक से रीड किया तो तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर आना ही आना, क्योंकि तुम्हारे पास आंसर है, हाँ तो होंगे लेकिन नाउ द आंसर्स विल बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो ऑप्शन दिए वो बहुत एक दूसरे के इतने क्लोज हो सकते हैं, और हर बार वैसे नहीं करेंगे पर एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसा करेंगे वो जिसमें बहुत क्लोज आंसर कि यू विल बी इन अ डायलेमा यार, दोनों भी अगर आंसर सही करते हैं कौन सा, और सिंगल चॉइस होगा तो फिर तो एकदम डिफिकल्ट टास्क, तो डिफिकल्ट टास्क मत दो, इफ यू रियली रीग्रुप योरसेल्फ यू थिंक ऑफ केयरफुली, है ना। तो अगर कुछ डेफिनेशन टाइप में है तो खुद को आंखें बंद कर लो, उधर मत देखो और अपना डेफिनेशन एक बार हमने पढ़ा हुआ एक बार बोल के देखो, वो डेफिनेशन बोला और लगा तो उधर ना देख के वो लिख के देखो, हाँ ये डेफिनेशन करेक्ट है, फिर से मैच करके देखो, एक वर्ड इधर उधर हो सकता है तो उसकी वजह से तुम्हारा आंसर उधर चूक हो जाएगा, है ना। तो डोंट हैव टू वरी मल्टीपल चॉइस में, हाँ है क्योंकि उसमें वो तुमको कंफ्यूजन में डालेंगे, बस इतना ही, मल्टीपल चॉइस में ज्यादा कुछ नहीं करते, आंसर तो तुम्हारे सामने सबके सामने, उनको उनका क्या काम होगा तुमको कंफ्यूज करना, ये आंसर ये है या ये सोचने में तुमको कंफ्यूज करना है ना। तो वो याद रखना। चलो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट देखा टर्निंग इफेक्ट, फिर उसके बाद हम आते हैं उसका ऐसा यूनिट, है ना। तो उसका हमने जब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने जब बताया दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, वो फोर्स अप्लाई एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट और द पिवोटल पॉइंट और द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये तीनों में से कुछ भी एक आ सकता है उधर। तो ये दोनों भी अगर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है तो उसका फॉर्मूला फिर हमने डिराइव क्या किया था, व्हाट वाज द डिराइव बोलने से अच्छा क्या लिखा था फॉर्मूला हमने उसका, यस ऑनलाइन कोई बता पाएगा व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? Yes, sir. क्या होगा फॉर्मूला? force applied into the distance. और कैसे इंडिकेट करेंगे उसको, करेक्ट, now is equal to f into perpendicular distance f into d, है ना, बराबर नहीं है?
मुझे एक बात बताओ, हमारा अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मुझे एक बात बताओ, ये हमने डिफाइन किया, वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क का फॉर्मूला क्या है? फॉरगेट अबाउट कॉस थीटा, एंगल छोड़ दो, कैसे डिफाइन करोगे? वर्क का FS. f into x, क्या फर्क पड़ेगा, कैसे बताओगे? अगर फर्क उन्होंने बोला दिस इज दिस एंड स्टेट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों का ऐसा यूनिट में क्या डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, मुझे बता। So one is given and one is that. ये जो है ना, ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे, ये फोर्स कहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो ले रहे हैं। ये जो डी है ये क्या है, जहां पर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट चला गया है इतनी दूर ओरिजिनल पॉइंट से, दैट्स द मेजर डिफरेंस। So here it is the distance between the distance of the force applied from the fixed point, and here it is the distance that the object covers or the displacement that the object takes. Okay, in the direction of force, opposite to the direction of force, perpendicular to the force, and at an angle to the force, that's the difference. वो तो बाद में हम लोग पता ही चलेगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो देखेंगे, वो हम लोग जब सेकंड चैप्टर ज्यादा देखेंगे तो समझ में ये बात, एक काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड। ओके, चलो वर्क इज रिलेटेड टू एस। तो फिर उसके बाद हमारा दो, इसके दो यूनिट्स, दो तरीके, एक ही यूनिट आएगा एक्चुअली, वो हमारा वर्क में दूसरा टाइप का यूनिट आएगा। इसमें हमारा यूनिट क्या आता है, फोर्स एंड न्यूटन है एंड मीटर। अगर उन्होंने मुझे ऐसे दिया है ना, उन्होंने मुझे लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, इनटू मीटर, लिख सकता हूं मैं ये? बताओ मुझे, सही है क्या ये? चलो फोर्स का पहले निकालेंगे, फोर्स का न्यूटन कैसे निकलता है? फोर्स क्या है? मास का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन यूनिट क्या है? तो ये वो लोग क्या करेंगे, कई बार अभी अभी तक हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है, पर शायद अभी फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। न्यूटन मीटर इज अ डिराइव्ड यूनिट, हाउ इज इट डिराइव्ड फ्रॉम? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये इसको और एक तरीका है लिखने का, देखो ये m दो बार आ रहा है, तो शायद वो ऐसे भी लिखे kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू माइनस, तो ये भी हमारा टू का ही हो गया, और न्यूटन मीटर भी हमारा टू का ऐसा ही होगा, ये दोनों ऐसे है। हम इसको शॉर्टन करके न्यूटन मीटर लिखा है क्योंकि हमने फोर्स के वक्त ही हमने फोर्स इज द डिराइव्ड एंड न्यूटन इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स, कहां से डिराइव हुआ था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना? तो वो हम अगर यूज करें तो डिराइव्ड यूनिट फ्रॉम, तो ये ऐसा यूनिट है, द ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आया, है ना? एक मतलब एक, दिस इज जस्ट एन असम्पशन दैट आई एम टेकिंग, ऐसा भी आ सकता है, तो हमको अभी सिर्फ प्योर यूनिट्स याद करने की जरूरत, मतलब रख के नहीं चलेगा, हमको उसका कहां से वो डिराइव हुआ, और ये हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि वो यूनिट, मतलब फर्स्ट चैप्टर हमारा अगर तुम लोगों को याद होगा तो डिराइव यूनिट अलग से, फंडामेंटल यूनिट अलग से पढ़ा गया है, बेसिक प्राइमरी, तो वो हमको याद होने चाहिए थोड़े बहुत। तो उसके लिए क्या याद होना चाहिए, जो हमने 9th में पढ़ा है, जैसे फोर्स हमने 9th में पढ़ा है, तो फोर्स का किससे डिराइव हुआ है, तो फोर्स इसमें भी आएगा, वर्क में भी आएगा, वहां पर भी हमारा अलग यूनिट बनेगा। जूल कैसे डिराइव हुआ है, कौन से किसी यूनिट, है ना? वर्क का यूनिट क्या है? जूल है, तो वो कैसे डिराइव हुआ, तो वो भी हमको पता चलेगा, तो ये चीज याद है। Can I say Joule has been derived even from Newton meter? Joule has been derived from Newton meter. Can I say that? कह सकते हैं हम जूल के मतलब वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, ऐसा ही है, और इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो ये फोर्स और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, बट आने मत दो क्योंकि उसके यूनिट लगभग सेम है, सिर्फ बोलते हैं हम इसको क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर ही करते हैं, क्योंकि जब जूल बोलेंगे तब समझ लेना वर्क के बारे में बात हो, और जब न्यूटन मीटर बोलेंगे तो तब क्या समझेंगे हम लोग?
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं, है ना? Okay. अभी आते हैं कपल की तरफ, है ना? नेक्स्ट इज कपल। बाकी तो हमको याद है, इधर ये दरवाजा इधर है तो इधर उसका हैंडल इधर की तरफ क्यों है, वो अंदर की तरफ क्यों नहीं है, ये हमको पता है। हमें अभी अभी पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये हमें फैक्टर अगर पता है तो वी कैन इजीली से फादर इज इट अवे, नो डाउट इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ मच बेटर टर्निंग, है ना? जितना दूर एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उतना अच्छी तरह से उसका टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। हाँ, द ओनली थिंग इज वी कैन नॉट एक्सटेंड अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस, उसके लिए भी लिमिटेशन है, बट यस हमें वो सोचना नहीं है, अभी हमें यही सोचना है कि जितना दूर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा उतना वो अच्छा होगा। And then they might give you, they'll give you an example and they might ask you what is the phenomena that we are talking about. They might give you an application. कि a car is, there's a car which got punctured, whatever punctured, and the driver had to change the wheel of the car. He took a jack, he pulled up the jack, he applied some force on the jack, and he was able to lift up the car and change the wheel. Which phenomena related to physics was utilized or from the following was utilized, है ना? तो ये पूछा जा सकता है, हमको वो आंसर करते आना चाहिए। Agreed or not children? You are online also. Yes, sir. है ना? तो ये याद रखना है। चलो अभी नेक्स्ट कपल पे आते हैं। What is a couple? कपल देखो नाम, what is the meaning? What is the word? Literal meaning of the word couple? Literal meaning बताओ। मुझे फिजिक्स मत बताओ, मुझे सिर्फ literal meaning बताओ। Two things, कुछ भी हो जाए, है ना? तुम लोग क्रिकेट कमेंट्री कभी सुना होगा, तो उसमें कपल ऑफ रन्स इज एबल टू स्कोर कपल ऑफ रन्स ऑन दैट। कपल रन मतलब क्या? दो रन, है ना? तो कपल मतलब अभी हम लोग किस मतलब इन रिस्पेक्ट टू व्हाट आर वी स्पीकिंग अबाउट द कपल, इन रिस्पेक्ट ऑफ फोर्स। और फोर्स हम लोग किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि उसमें एक पॉइंट कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। पर अभी हम लोग यूजुअली कपल एक ही साइड पे इस्तेमाल करते हैं, पहले नहीं होता है तो फोर्स ऐड करते हैं, या तो एडिंग F into D, एक पॉइंट में फोर्स अप्लाई किया, into D किया उसका डिस्टेंस, और दूसरा फोर्स into D किया उसका डिस्टेंस। तो वी आर नॉट मच वरीड अबाउट दैट, वी आर वरीड अबाउट इफ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड समवेयर इन द मिडल, है ना? और हम लोग दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं? पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, है ना? हम एक पॉइंट के ऊपर है, एक पॉइंट नीचे कर रहे हैं, अप्लाई उसको फोर्स नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? दो अलग-अलग पोजीशन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये हो गया कपल। अभी कपल में भी क्या कर रहे हैं हम लोग? टर्निंग इफेक्ट दे रहे हैं, वी आर एबल टू प्रोड्यूस, अग्रीड चिल्ड्रन, वी आर एबल टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। द ओनली थिंग इज दिस टाइम इट इज मोर कंफर्टेबल टू प्रोड्यूस, है ना? सोचो एक ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल लेवर ऑफ अ टैप, इफ यू अप्लाई ओनली फोर्स ऑन दिस साइड, है ना? स्कूल में तो ऐसे ही लीवर वाले टैप्स होते हैं, तो जब हम एक ही साइड पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे और दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? इट इज मच इजी फॉर अप्लाइंग फोर्स ऑन बोथ साइड्स एंड रोटेटिंग इट रादर देन वन, है ना? क्योंकि डबल फोर्स अप्लाई होगा, एक साइड पे अप्लाई करोगे तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करो, इट्स यूजलेस। So you are rotating your entire hand, anyway you want to move your hand, तो उसको entire रोटेट कर रहे हो, उसके साथ टैप का लीवर घूम रहा है, so it's going to produce a better effect because दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज द सेम। When I am speaking about anti-clockwise or clockwise, rotational direction सेम की बात कर रहे हैं, तभी करेंगे हम ये तो नहीं करेंगे कोई बंदा कि दोनों एक ने ये बाजू से अप्लाई किया, एक ने ये बाजू से फिक्स करेगा, कोई नहीं करेगा, दोनों ऐसे ही पकड़ेंगे ना हम लोग, तो स्टार्ट करोगे तो वो ऐड होने वाला है। Okay, so that is a couple. The main aim of the couple is to improve the efficiency of rotation, है ना? With the same amount of force that is applied. हम लोग force जब हम इस बार couple हम लोग specifically क्यों define कर रहे हैं? That equal forces are being applied. जब definition देखोगे तो equal forces ही लिखा है। Two equal and opposite forces which are applied, which are not acting along the same line, है ना? तो इसलिए हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग देखो एक्चुअली कपल इट इज नॉट मेंटेनेड, बिकॉज़ हम लोग जब टैप रोटेट करेंगे तो हम लोग मेजर करके नहीं देखेंगे कि इधर और इसके इधर मैंने अप्लाई किया, और ये तो ठीक है, टैप का तो लीवर छोटा हो गया, कोई चीज बड़ी हो गई तो भी हम लोग ये नहीं करेंगे। आगे समझो कुछ बड़ा सा ये फिक्स है और उसको मूव करना है, एक बंदा वो बजे एक में इधर से पकड़ना, तो जरूरी नहीं है ना एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे, उसको भी कपल कहा जाता है। बट फॉर अस
फॉर अस कपल एक स्पेशल केस के बारे में ही बात कर रहे हैं जहां पर फोर्सेस इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नॉट अलोंग द सेम लाइन, ओके, दैट इज द केस। दे आर एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट के एक वो बाजू है तो एक ये बाजू है, दैट इज कपल। अगेन वी आर स्पीकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ टर्निंग इफेक्ट, तो हम लोग टर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसका भी ऐसा ही क्या होगा, सेम एज तो डबल टोर जनरेट हो रहा है ना, एक वो बाजू से राइट, ये बाजू से कपल में क्या हो रहा है, डबल टोर जनरेट, तो टोर डबल हो या सिंगल हो उसका ऐसा यूनिट तो सेम ही रहना है, ऐसा यूनिट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, यूनिट में पड़ेगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ टोर इज आल्सो द सेम एज कपल एंड कपल इज आल्सो द सेम एज टोर। अभी सीजीएस यूनिट की तरफ आते हैं, सीजीएस यूनिट इज sin सेंटीमीटर, राइट, है ना, तो ये नीचे का अभी मैं अभी रिलेशनशिप हमको ऑलरेडी पता है, रिलेशनशिप दोनों के बीच का है ना, ये देखो फोर्स का रिलेशनशिप तुमने लास्ट ईयर डिराइव किया था, याद होगा, सिर्फ फोर्स का टेकन है मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर उसका असाइनमेंट हमने क्या निकाला, मास का किलोग्राम और मीटर पर सेकंड, है ना, फिर हमको उसको क्या करना था सीजीएस यूनिट में, तो इसको 1 किलोग्राम इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन इक्वल 1 किलोग्राम। फिर हमने क्या किया, इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट, अभी हमको सीजीएस में जाना है तो ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मीटर, मैंने उसको कन्वर्ट किया। फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाना, तो सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो सेम हो गया, सिर्फ मीटर पर सेंटीमीटर में 100 हो गया, तो ये हो गया 10 into 3 into 10 into 2 ग्राम सेंटीमीटर, और इसी को हमने 10 into 5 टाइम मीटर, है ना, याद है, ऐसे हमने ये 9th में फोर्स के चैप्टर में देखा है। अभी इसी को हम लोग यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द रिलेशन ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमारा क्या है, ये है न्यूटन इनटू मीटर, so 1 newton multiplied by 1 meter, now 1 newton is how much, 10 raised to 5 times, so 10 raised to 5 times, and 1 meter is equal to how many centimeter, है ना, तो 10 square into सीधा तो हो गया equal to 10 raised to 7 times हो गया, ऐसा ही सीरीज करना है। तो हमने क्या किया, व्हाटएवर प्रीवियसली वी हैव डन, वी यूटिलाइज इट, हमको तो ऐसे भी कैलकुलेशन करना है नहीं, है ना, वो देखिए उधर का रिलेशन भी उन्होंने दिया होगा, हमको सिर्फ वेरीफाई करना है कि कौन सा अपना परफेक्ट यूनिट मैच करता है ना, कई बार वो ये डाल देंगे सिर्फ इधर 9 सेंटीमीटर, है ना, समवेयर यू लेट प्लीज 10 raised to 5 times सेंटीमीटर, अरे ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है, ये भी पढ़ा हुआ लगेगा ना कभी भी कि तुमने दोनों प्रैक्टिस किए होगे, 9 में इसका प्रैक्टिस किया होगा, 9 में टाइम, पर यूनिट हम लोग लिखते नहीं है, ये याद रखना, हमको ये आदत है, और आईसीएसई के बच्चों को ये आदत है, वी डोंट राइट इट एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर विद यू ऑल, बट वन थिंग आई लाइक अबाउट सीबीएसई इज दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन यूनिट फोर्स। हमारे इधर जब चेकिंग पेपर चेकिंग होती है तो किसी क्वेश्चन में यूनिट को इग्नोर किया जाता है, बिकॉज व्हाई कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट सही यूज किया है, उसका कैलकुलेशन सही है, फॉर्मूला सही है, बट यूनिट ने लिखा है तो उसको बताओ, है ना। चलो वन थिंग इज यस, नो डाउट सपोर्टिव व्हाट इज द रोल ऑफ द बोर्ड, बट देन द चाइल्ड द स्टूडेंट शुड बी अवेयर, हम लोग खुद अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं कि हम लोग यूनिट लिखने की हैबिट बनाएं, चलो बोर्ड में नहीं एटलीस्ट प्रैक्टिसेस में करें, है ना, क्योंकि प्रैक्टिसेस में करोगे तो आगे 11th 12th में तुम्हारे फायदे में पड़ेगी, है ना, आगे 11th 12th में अगर फिजिक्स लिया तो ये फायदे में पड़ेगा, तो याद रखना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
एमसीक्यूज में खास करके एंड एंट्रेंसेस आर एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में तो ये चीज बहुत इफेक्ट देने वाली है जब हम कोई तो उसके तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपल हो गया, मोमेंट ऑफ कपल मतलब मेजरमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल मींस व्हाट? मेजरमेंट ऑफ कपल इज द इफेक्ट ऑफ द कपल, दैट इज व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे टॉर्क होने का वही बात है। फिर उसके बाद आगे क्या है नेक्स्ट? आई थिंक सो इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चन एंड डायग्रामेटिक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूजुअली हम लोग अभी पहले वही मैं आने वाला था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स करने से पहले आपको इक्विलिब्रियम क्या है वो अच्छी तरह से याद हो। अभी इक्विलिब्रियम हमने आगे पहले पढ़ा है, पर उसका नाम थोड़ा देखो, एक्चुअली देयर इज conceptually there's a good difference between inertia and equilibrium. तुम कई लोग ये सोचते हैं कि सर इनर्शिया में भी हम एट रेस्ट एट मोशन की बात करते हैं और इक्विलिब्रियम में भी हम लोग वही बात करते हैं, है कि नहीं? हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं और इनर्शिया में भी मेंटेनिंग द स्टेट की बात करते हैं ना। तो बैलेंस फोर्सेस में स्टिल इज मेंटेनिंग द स्टेट। जब इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट है, कब है इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन ऐसे दो, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन। बट वी आर नॉट मच वरीड अबाउट इट, वी आर वरीड अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। व्हाई? बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट। एक ऑब्जेक्ट है, वेट बैलेंस है, एक साइड में वेट डाल के रखा है, तो उसको बैलेंस करना है, तो उधर वेट डालो, तो उधर कितना वेट लगेगा, वो कहां पर प्लेस है ना। तो हर बार कपल आएगा ऐसा नहीं, वो लोग के एग्जांपल देखिए, वो कपल का ही देखिए, इसका क्या है ना। क्योंकि कपल का एग्जांपल बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने अगर एक साइड का वेट दिया और दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दूसरे साइड का वेट सेम ही होना चाहिए, उसमें बड़ी बात नहीं है ना। तो हमको यूजुअली कपल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हमको क्वेश्चंस आएंगे या तो एक बाजू को दो फोर्सेस, एक बाजू को एक फोर्स, मतलब एक बाजू को मल्टीपल, एक बाजू को एक कम ज्यादा, दो तीन जो भी है ना। ये तो ये देखिए, या तो एक बाजू को फोर्स बहुत दूर है, एक बाजू को फोर्स बहुत नजदीक है, तो दोनों को इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे, वो टाइप के क्वेश्चंस है ना। तो वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज and we are more interested in equilibrium of balanced state, that is rest। तो जब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उसमें दो जहां पर वो प्लेस है वो पॉइंट से दोनों बाजू के अप्लाइड फोर्सेस फिक्स होनी चाहिए। अब इस केस में देखो, यहां पर मैं एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं हूं। इफ यू लुक एट द मार्कर, I have not placed the fixed point is not exactly at the center. The reason is that on one end there is a cap, है ना। और कैप देखो, ये दिस इज अ हॉलो पार्ट, ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है ना, ये हॉलो है। इसके अंदर जो स्पॉन्जी मटेरियल है जिसमें हम लोग इंक डालते हैं, इट इज नॉट वेरी हेवी। बट इफ यू गो हियर, ये साइड में ये जो है उसका ये पार्ट ये थोड़ा हेवी है, तो इसलिए मैं अगर मैं उसको एग्जैक्ट सेंटर पे बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक साइड पे इसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक एंड पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, तो दोनों ठीक साइड पे रखना है। अब क्या करना है, उसको मैं सेंटर पे रखूंगा तो गिर जाएगा। तो ये चीज हमारा एक सिंपल एग्जांपल अगर दिमाग में रखेंगे ना तो भी हमको याद रहेगा। यू माइट हैव ट्राइड कीपिंग द स्केल ऑन योर हैंड, अपनी मेजरिंग स्केल, वो तो आराम से बैलेंस हो जाते हैं एग्जैक्टली सेंटर पे। ये तो ट्राई करके देखो। हां, द ओनली थिंग इज द स्केल शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सबको समझ में आता है, ये ऑनलाइन सबको समझ में आता है व्हाट इज यूनिफॉर्म, Yes, है ना। यूनिफॉर्म मतलब थिकनेस एग्जैक्टली सेम थ्रू आउट द स्केल, उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मटेरियल, द ऑब्जेक्ट। फॉरगेट अबाउट स्केल, व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट एनी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप हो, उसका शेप यूजुअली कैसा होता है, सिमेट्रिकल शेप में होता है। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल शेप में होते हैं, और उसका मास सब जगह पे इक्वली। ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इफ यू आर होल्डिंग दिस वे, बट इफ यू आर होल्डिंग दिस वे and I remove the cap, now it's a uniform object. Because here there is a center where I can balance it. कैप के साथ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि कैप को एक साइड पे क्लिप भी है, that is contributing to some imbalance in the center of that particular, है ना। तो ये याद रखना, समझ में आई बात। तो कैलकुलेशंस तो हमको आसान है, हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, तो वो इक्विलिब्रियम तो आपको समझ में आया, है ना। तो हमारा प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कब करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तभी
तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे हो। टाइम हो गया तो मुझे बता बिकॉज आई गेट लॉस ये बन गए तो नहीं 2-3 मिनट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के लिए हमारा इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट। सी मेनी ऑफ देम व्हाट दे डू state the principle of moments. Sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments. It's a pure incomplete statement. उसके पहले देखो तुम ठीक से उधर ऊपर लिखा है, देखो एक वो ब्लू ब्लॉक में तुम देखो क्या लिखा है, ठीक से लिख, सिर्फ वर्डिंग देखो, वो इक्वालिटी मत देखो, इक्वेशन मत देखो, उससे पहले देखो क्या लिखा है, वही स्टेटमेंट ब्लॉक में ही। टेल अस द पेज नंबर, हां दैट्स इट, क्या लिखा है उधर देखो थोड़ा। तो इक्विलिब्रियम का वर्ड आया क्या उधर, आया ना? तो इक्विलिब्रियम इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, वी यूज प्रिंसिपल्स फॉर दैट ओनली। हम लोग मोमेंट का प्रिंसिपल कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको वो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में लाना है, और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फिर हमारा क्या एक्सप्रेशन होगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव मोमेंट्स दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स should be equal to नेगेटिव मोमेंट्स दैट इज क्लॉकवाइज। इन दोनों का एडिशन 0 हो गया, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना? बिकॉज़ एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन वाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव पकड़ लिया, दूसरे को नेगेटिव पकड़ लिया, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो एडिशन ऑटोमेटिकली 0 होगा। एक +2 एक -2 है, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर क्या आएगा 0। +2 न्यूटन मीटर एंड -2 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, है ना? या तो अलजेब्राइक सम लेंगे या तो इक्वेशन लेंगे। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, और द अलजेब्राइक सम ऑफ द क्लॉक ऑफ द मोमेंट्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू। ये दोनों भी चीजें सेम है, बट प्रिंसिपल बताते वक्त हम लोग सिर्फ इक्वालिटी की बात करते हैं। अप्लाई करते वक्त वी कैन यूज एनी ऑफ देम, बट जब हम स्टेट करेंगे, स्टेट, तब हम लोग इक्वालिटी, समझ गई बात?